احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے حاضری مکمل کرائی۔ عدالت نے بریت کی درخواستوں پر 4 جون کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کی بھی سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حاضری مکمل کرائی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ بھی پیش ہوئے۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اپنی حاضری مکمل کروائی۔ شہباز شریف کے وکیل چودھری نواز نے بریت کی درخواست پر دلائل کے لیے مہلت مانگی تو پروسیکیوٹر اسد اللہ ملک نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہم بحث کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں اور یہ نئی تاریخ مانگ لیتے ہیں۔ شہباز شریف نے پروسیکیوٹر کی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا پروسیکیوٹر کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ فاضل جج نے کہا یہ آپ سے مذاق کر رہے ہیں، ان کی بات کا آپ برا نہ منائیں۔ شہباز شریف نے کہا جج صاحب نیب نے مجھے گرفتاری کے بعد پہلی رات حوالات میں فرش پر لٹا دیا تھا۔ نیب کا دوران حراست میرے ساتھ رویہ توہین آمیز تھا۔ فاضل جج نے کہا دوران تفتیش کیا ہوا یہ الگ معاملات ہیں، ان کا کیس سے کوئی تعلق نہیں، فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے مزید سماعت 4 جون تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی آوان نے آشیانہ اقبال ریفرنس پر سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ بھی پیش ہوئے۔ نیب کے پروسیکیوٹر اسد اللہ ملک نے 2 گواہان پیش کیے مگر شہباز شریف کے سینئر وکیل امجد پرویز کی FIA کورٹ میں مصروفیت کے باعث گواہان پر جراح نہ ہو سکی۔ عدالت نے مزید سماعت 4 جون تک ملتوی کرتے ہوئے گواہان کو جراح کے لیے دوبارہ طلب کر لیا۔ دوران سماعت شہباز شریف نے روسٹرم پر گفتگو میں کہا کہ آشیانہ اقبال کیس میں مجھ پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، میں نے ایک تھیلے کی کرپشن نہیں کی، میں نے مختلف منصوبوں میں بطور وزیر اعلیٰ کرپشن کو روکا، میں نے آشیانہ اقبال میں کچھ بے ضابطگی دیکھی تو انکوائری کا کہا، نیب نے ریفرنس بنایا تو مجھے ہی مرکزی ملزم بنا دیا، میں نے لمبی قید کاٹی۔ اس پر فاضل جج نے کہا آپ اطمینان رکھیں، سب باتوں کو میرٹ پر دیکھیں گے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے شیری مزاری کو گرفتار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے شیری مزاری کی رہائی کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسی بھی خاتون کی گرفتاری معاشرتی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شیری مزاری کو گرفتار کرنے والے اینٹی کرپشن عملے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے شیری مزاری کی رہائی کا حکم دے دیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ کسی بھی خاتون کی گرفتاری معاشرتی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شیری مزاری کو گرفتار کرنے والے اینٹی کرپشن عملے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ تفتیش اور تحقیقات کے نتیجے میں اگر گرفتاری ناگزیر ہے تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون بحیثیت سیاسی جماعت خواتین کے احترام پر یقین رکھتی ہے۔ شہر بھر میں گیسٹرو کے کیسز میں تیزی سے اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران ہسپتالوں میں 3000 سے زائد مریض لائے گئے۔ 700 بچے بھی موسم کی شدت سے متاثر ہوئے۔ طبی ماہرین کے مطابق ڈائریا کی حالیہ قسم سے گردوں کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ گرمی کی لہر اور غیر معیاری خوراک کے استعمال سے گیسٹرو انٹرائٹس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 3000 سے زائد مریض لائے گئے، جن میں 700 سے زائد بچے شامل ہیں۔ معروف فزیشین پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم نے خبردار کیا ہے کہ ہیضہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کے باعث ڈائریا کے ساتھ ساتھ گردوں کا انفیکشن بھی۔ پینے کا پانی زیادہ استعمال کریں، لسی لے لیں، ORS کا استعمال بڑھائیں، صفائی کا خیال رکھ لیں، ہاتھ صاف رکھیں، جہاں کھانا پکاتے ہیں جو کھانا پکا ہوا ہے گرم کر کے کھائیں، ٹھنڈا نہ کھائیں، بازار کھانے نہ کھائیں۔ یہ جو ہم دہی لیتے ہیں بازار، چٹنی لے رہے ہیں، آئس کریم لے رہے ہیں، جو باہر سے پانی پیتے ہیں وہیں اسی سے اسپریڈ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں اور عمر رسیدہ افراد کو حالیہ موسم کی شدت سے بچانے کا خصوصی انتظام کیا جائے۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کاغذ کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ کتابیں اور کاپیاں بنانے والوں کو مشکلات۔ عام پیپر 25 سے 30 روپے مہنگا، دام 205 روپے کلو تک جا پہنچے۔ فوٹو کاپی کے لیے استعمال ہونے والا ایک کلاس پیپر بھی 60 سے 70 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ مخلوط سرکار مافیا کے ہاتھوں یرغمال بننے لگی۔ پوچھ گچھ نہ ہونے کے باعث مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتہ کے روز کتابیں اور کاپیوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا لوکل پیپر 25 سے 30 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ اب لوکل پیپر 205 روپے فی کلو گرام ہو گیا ہے۔ اس طرح فوٹو کاپی کے لیے استعمال ہونے والا ایک کلاس لوکل پیپر 60 سے 70 روپے مہنگا ہو گیا ہے، جس کے بعد فوٹو کاپی پیپر کی نئی قیمت 270 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ تاجر برادری اور غریب والدین کاغذ کی قیمت بڑھنے پر پریشان ہیں۔ ڈالر کی اڑان، معیشت ہلکان۔ ایک ہفتے میں امریکی ڈالر 7 روپے 61 پیسے مہنگا ہوا، 200 روپے 40 پیسے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا۔
एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 7 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए 53 पैसे से महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 200 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ, जबकि 7 दिनों में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3.95% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 30 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में डॉलर 194 रुपए 70 पैसे महंगा होकर 201 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा सोने की कीमतें 1,39,500 रुपए की रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं। मजमूई तौर पर हफ्ते भर में सोना 3,400 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद खालिस 24 किरात फी तोला सोने की कीमत 1,39,500 रुपए तक जा पहुंची। 22 किरात फी तोला सोना 1,27,737 रुपए का रहा। 21 किरात फी तोला सोना 1,21,931 रुपए का हो गया और 10 ग्राम तेजाबी चांदी 1,570 रुपए की रही। सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों ने मतवस्त तबके की कुव्वत खरीद को तबाह करके रख दिया और वो अब मसनूई जेवरात की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत का फ्लोर मिल्स के लिए गंदम के इजरा की पॉलिसी को मजीद सख्त करने का फैसला सामने आया। फ्लोर मिलों को गंदम के इजरा पर पंजाब में नई पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके लिए महकमा खुराक ने बाकायदा हुकूमत को आगाह कर दिया है। नई पॉलिसी के मुताबिक डिफॉल्टर मिल्स को कोटे के तहत गंदम का इजरा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम निकालने का तनासुब 12-18-70 मुकर्रर किया जाएगा। फ्लोर मिल्स के लिए स्टॉक और गंदम के इजरा की मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी। जराये का कहना है कि महकमा खुराक की टीमों को फ्लोर मिलों की इंस्पेक्शन के लिए खुली इजाजत होगी। फ्लोर मिलों को गंदम के इन आउट पर मुकम्मल इंदराज की फहरिस्त देना लाजिम होगी, जबकि ई परमिट वाली फ्लोर मिल्स को ही सिर्फ गंदम की मूवमेंट की इजाजत होगी। जराये का कहना है कि मिलों के लिए महाना 650 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल भी लाजिम होगा और वाजिबुल फ्लोर मिलों को आटे से महरूम रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत का 10 जून को बजट पेश करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ताहाल बजट के लिए तारीख मुकर्रर न कर सकी। वफाकी हुकूमत ने 10 जून को बजट पेश करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत ताहाल बजट के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं कर सकी। बजट तैयार न होने से सूबे के माली अमूर मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। पंजाब में वजीर खजाना न होने की वजह से बजट तकरीर भी तैयार नहीं हो सकी, जबकि मई का आखिरी हफ्ता आ गया है, लेकिन पंजाब का बजट अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। वजीर खजाना की नशिस्त खाली होने से महकमा खजाना बजट के लिए कोई गाइडलाइंस भी हासिल नहीं कर सका। बजट तैयार न होने से पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबे भी ताखीर का शिकार हो जाएंगे। पुरकशिश नंबरों की ई ऑक्शन में नाकिस पॉलिसी के बायस खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। ई ऑक्शन में नीलाम न होने वाले 26,000 से जायद नंबर फ्रीज होने से इस्तेमाल न हो सके। एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली, करोड़ों के पुरकशिश नंबर्स जाया हो गए हैं। 1.5 साल में नीलामी में फरोख्त न होने वाले 26,925 नंबर्स जाया हो गए हैं। महकमा एक्साइज ने ई ऑक्शन में फरोख्त न होने वाले नंबर्स फ्रीज करने का फैसला किया था। गुज़श्ता 1.5 साल में महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की 216 सीरीज की ई ऑक्शन कराई, जिसमें महकमा एक्साइज ने 27 करोड़ 13 लाख की रकम हासिल की। मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबरों की 270 नीलामियों में 10 करोड़ 35 लाख की रकम हासिल हुई है। कमर्शियल गाड़ियों की 10 सीरीज में से 31 लाख का रेवेन्यू हासिल हुआ। तीनों कैटेगरीज में 30% से ज्यादा नंबर्स फरोख्त न होने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। करोड़ों के नुकसान के बाद आइंदा नीलामी में फरोख्त न होने वाले नंबर्स की नीलामी के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। हुकूमत की मंजूरी के बाद नंबर्स पहले आए पहले पाएं की पॉलिसी के तहत फरोख्त होंगे। शाह कमाल वहादत रोड के इलाके में गुज़श्ता 6 रोज से पानी की बंदिश के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। वासा और ज़िले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। शाह कमाल वहादत रोड के रहायशियों ने गुज़श्ता 6 रोज से पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि उनके घर पीने और नहाने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं। वासा और ज़िले इंतजामिया को इस हवाले से मुतादिद शिकायत की, मगर उनके कान पर जून तक नहीं रेंग रही। जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा वो ट्यूबवेल नहीं चलेगा, लेकिन उस ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया गया है, मगर इफ्तिताह करने का फ़ायदा आवाम को नहीं हुआ। वो जो भी डीजल जला रहे हैं वो बेफजूल जला रहे हैं, वो आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है एक ट्यूबवेल की बोर बिल्कुल बैठ चुकी है और मुरम्मत का काम जारी है, जबकि दूसरे ट्यूबवेल का इफ्तिताह तो हुआ है, लेकिन उसको अभी तक बिजली का कनेक्शन तक नहीं दिया गया, जिससे शहरियों को पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानी सेंटर में तलबा को मुबैना तौर पर पैसे लेकर नकल करवाने का इंकशाफ हुआ। नकल करवाने में इंतजामिया का साथ न देने पर निगरान मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सरफराज और अमीर हमजा ड्यूटी से फारिग कर दिए गए।
वहादत रोड पर वाक़ पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानी सेंटर में तलबा को मुबैना तौर पर नकल करवाने का इंकशाफ हुआ है। इम्तिहानी सेंटर D2 में तलबा से मुबैना तौर पर पैसे लेकर मारूजी पेपर हल करवाया जाता है। नकल करवाने में इंतजामिया का साथ न देने पर निगरान मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सरफराज और अमीर हमजा को ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। तीनों निगरानों का कहना है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पैसे लेकर पेपर हल करवा रहे हैं। उन्होंने कंट्रोलर इम्तिहानात से मुतालबा किया कि इम्तिहानी सेंटर D2 में अमला तब्दील करें ताकि इम्तिहानी सेंटर में जारी नकल को रोका जा सके। उनका कहना है कि हम तीनों बेकसूर हैं, इम्तिहानी ड्यूटी पर फौरी बहाल किया जाए। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन को वज़ीर आला ऑफिस में अपना मेहमान बना लिया। हमजा शहबाज की दावत पर गोल्डन मैन वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे और मुलाकात की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज का कहना है कि आप जैसे मेहनती नौजवान की हर मुमकिन मदद करेंगे। हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन से मुनफरिद काम अपनाने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर गोल्डन मैन का कहना था कि 3 भाई और 3 बहनें हैं, बहन भाइयों की खातिर गोल्डन मैन बनकर रोज़ी कमाता हूँ। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने रोज़ाना की बुनियाद पर अफसरान की मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया। रोज़ाना आने वाली 15 की कॉल्स, फ्रंट डेस्क की दरख्वास्तों पर SPs और DSPs SHO से पूछगछ शुरू करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आप अगर क्राइम को फ्री रजिस्टर नहीं करेंगे तो बंदे पकड़े नहीं जाएंगे, इस तरह उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाया जाएगा। एक मरबूत निज़ाम बनाया है CCP साहब ने भी और मैं भी उसी को देख रहा हूँ कि तमाम जितनी 15 की कॉल्स की जाती हैं नंबर 1 उनको, और जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं 8787 पे या 1787 पे जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम CMS जिससे हमारा एक सिस्टम है उस पर जो भी कंप्लेंट आती है शहरी हमसे ये कहते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है। अगर वो इंसिडेंट वेरीफाई हुआ है तो उसको फ़ौरन FIR करनी चाहिए। अगर उसका वेरिफिकेशन हो चुकी है और FIR में डिले है तो इसकी कोताही SHO पे आती है। इसका निज़ाम बनाया गया है। दूसरा ये है कि जो हमारे जितना भी क्राइम है उसकी एक शहर को पोलियो फ्री बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने रवां बरस की चौथी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने मियां मीर हस्पताल में कम उम्र बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे और बच्चों को महफूज बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने कमर कस ली। मियां मीर हस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र तकरीबन 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ पूरा किया जाएगा। 6800 टीमें पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगी। 23 मई से 27 मई तक लाहौर जिले में 20 लाख बच्चों को हम तकरीबन घर घर जाके पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इन टीमों से ताउन करें। उमर शेर चट्ठा का मजीद कहना था कि पोलियो मुहिम में DDOs हेल्थ, UCMOs और एरिया इंचार्जेस समेत तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसील में पोलियो वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी को सख्ती से मॉनिटर करेंगे। पोलियो मुहिम 27 मई तक जारी रहेगी। ताहम रिफ्यूजल और मिस्ड केसेस की तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए तो ऐसा इकदाम बच्चों के मुस्तकबिल का जामिन हो सकता है। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, City 42।